اور پہاڑی پر غم کا اختتام ایک پرانی کھردری سلیب کھڑی تھی۔ ہاللویا! کیونکہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہیلو، میرا نام چکوو گوزی اومنیاوا ہے۔ خوش آمدید۔ عیسیٰ مسیح کی صلیب ایک نئی نشریات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، میں ایک جواب تیار کرنے میں مصروف رہا ہوں۔ ہماری ایک نشریات ہنر سے بنے خدا اور نہ خدا، بہت لایا سوالات، تحریریں، فیڈ بیک اور کیا کچھ، اور میں نے پچھلی 2 ایک ساتھ میں وقت نکالا ہے۔ ایک خاص فیڈ بیک ایک نوجوان آدمی سے جو میں جانتا ہوں اور جو ایک مسیحی اور پادری ہے، اور اس نے جو کچھ کہا یہ میرے لیے خطرناک لگ رہا تھا۔ وہ ایک مسیح کا چرچ کے باقاعدہ رکن بنے اور پھر بھی جائے گاؤں کے دیوتا کے پاس جا کر جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں، یہ مجھے بتاتا ہے کہ یہاں ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ تو پچھلے 2 ایک ساتھ میں یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ نمبر 1، اگر آپ کے پاس یسوع ہے تو آپ کے پاس خدا کی ہر چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس یسوع ہے تو آپ کے پاس معموری ہے، خداوند قادر مطلق کا۔ تو آپ کو کسی اور دیوتا کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی گاؤں کے دیوتا کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی چیز کو عزت دینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عبادت ہر شک کہ آپ کو خدا کو دینا ہے۔ آپ اسی کو دیتے ہیں جس کا نام یسوع ہے، جو اب آپ کے اندر رہتا ہے، جو آپ کے اندر ہے، تو آپ خدا کی عبادت کر سکتے ہیں اور سچے اور زندہ خدا کی عبادت کریں بغیر کسی درمیانی کے اور ایسی چیزیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح جاری رکھوں۔ میں یہ سب کچھ ہمیں پڑھ کر رہا ہوں کتاب کلسیوں سے، جو کوئی بھی جانتا ہے بائبل کی تاریخ جانیں گے کہ یہ اسی وجہ سے ہے۔ یہ بالکل یہی وجہ ہے کہ پولس نے کلسیوں کے نام خط لکھا۔ کیوں؟ کہ کچھ لوگ کلسی میں آ کر انہیں بتا رہے تھے کہ وہ کچھ دیوتا کے بارے میں اور یہ کہ یسوع سب کچھ نہیں ہے۔ تو پولس نے یہ لکھا تھا ان دلائل کو رد کر سکے اور انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ جو آیا، صلیب پر گیا، مر گیا اور 3 دن بعد زندہ ہوا، وہ یسوع مسیح ہے، اور اس میں خدا کی مکملیت رہتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ کے پاس خدا ہے، اور آپ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں، آئیے ایک دعا کا کلمہ شیئر کریں۔ یسوع کے نام میں پیاری آسمانی باپ، شکریہ انسانیت کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، جس نے آپ کو اپنے بیٹے ہمارے رب یسوع مسیح کی صورت میں خود کو قربان کرنے پر مجبور کیا۔ آپ کی طاقت کا شکریہ جس نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اور اس پر ایمان لانے کے لیے آپ کا شکر ہے، اور آپ کے بچے بن جائیں۔ اے رب، آج اس نشریات میں ہمارے ساتھ جاری رکھیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا روح ہر ایک کو خدمت کرے جو دیکھ رہا ہے، اور ہر ایک کو جو ابھی دیکھے گا۔ یہ آپ ان کے دلوں کو کھولیں اور یسوع کو ان کے دلوں میں داخل کرے تاکہ وہ یسوع کو جان سکیں، اسے رب اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرے اور زندہ خدا کے بچے بن جائیں۔ یسوع کے نام میں ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ تو ہاں، بہت جلدی مجھے یہ کہنا ہے کہ جب آپ کے پاس یسوع ہے، آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو خدا ہے۔
आपको किसी और माबूद की तलाश करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि एक नौजवान ने मुझे लिखा, उसने कहा, चाहे आप रब में कितनी ही दूर क्यों न जा चुके हों, जब आपकी बारी आएगी वो आपको बुलाएंगे कि आए और जिम्मेदारी लें, या आप रवायत रस्म रिवाज के मुताबिक मर जाते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, सबसे पहले यसू ने रवायत और सकाफत के बारे में कुछ बहुत ही अमीर कहा। आप जानते हैं, और मैं सिर्फ इसका दौरा करना चाहता हूं। मरकिस बाब 7 आयत 8 और आयत 9 खुदा के हुक्म को छोड़ने के बारे में। तुम लोग इंसानों की रवायात को पकड़ते हो, जैसे बर्तनों और प्यालियों को धोना और ऐसी ही बहुत सी दूसरी चीजें जो तुम करते हो। और उसने इनसे कहा कि तुम बहुत अच्छे तरीके से खुदा के हुक्म को रद्द करते हो ताकि अपनी रवायात को बरकरार रख सको। अब बहुत बार ये चीजें जो वो हमें बताते हैं वो रवायात और सकाफतें और ऐसी ही चीजें होती हैं। सुने, खुदा का कलाम इतना ही ताकतवर है जितना कि खुद खुदा। यूहन्ना बाब 1 आयत 1 में इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो ये खुदा का कलाम जो खुदा ने बाइबल में महफूज किया, कलाम, रूह, दुनिया, ये सब खुदा ताला है। और इस जमीन पर कोई भी रवायत, कोई भी सकाफत इस पूरी कायनात में खुदा ताला से बड़ा कुछ नहीं है। तो वो आपको बता सकते हैं, एक अरब इंसान इकट्ठे होकर आपको बता सकते हैं कि अगर आप ये नहीं करते, अगर आप इस माबूद की इबादत नहीं करते तो आप मर जाएंगे। उन्हें बताए कि मैं खुदा के कलाम पर खड़ा हूं, कि मैं तबलीग कर रहा हूं। ये झूठ है, आप नहीं मरेंगे। आमीन, आप नहीं मरेंगे। अब मैं जारी रखूंगा। यसू ने यूहन्ना बाब 10 आयत 28 में कहा, वो कहते हैं, वो मेरे पीछे चलते हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी देता हूं ताकि वो कभी भी खो ना जाए। कोई भी उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। आयत 29, मेरे बाप ने उन्हें मुझे दिया और वो हम सबसे बड़ा है। कोई भी उन्हें इसके हाथों से नहीं छीन सकता। आयत 30, और मैं बाप के साथ एक हूं, तो ईसा और बाप एक है। आइए कभी भी ये ना भूली, आइए कभी भी ये ना भूली। इसीलिए इसीलिए अगर आपके पास ईसा है तो आपके पास खुदा की मुकम्मल ईट है और आपको किसी और देवता की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने ये बात जितनी मुमकिन हो वाजे कर दी है। हमने ये पिछले हफ्ते पढ़ा था, खुदा पूरी तरह ईसा में बसता है और तुम मुकम्मल तौर पर बड़े हो चुके हो क्योंकि तुम मसीह के हो, जो हर ताकत और इख्तियार से बड़ा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें तुम्हें क्यों नहीं छू सकती? तुम क्यों नहीं मरोगे? देखो बाइबल क्या कहती है। अभी हम कलसियों के बाब 2 की आयत 11 पढ़ रहे हैं। मसीह ने तुम्हारी खुदगरज ख्वाहिशात को भी दूर कर दिया है, जैसे खतना जिस्म से गोश्त को हटा देता है। और जब तुम्हें बपतिस्मा दिया गया तो ये ईसा के साथ दफन होने के मुतरादिफ था। फिर तुम जिंदा किए गए क्योंकि तुम्हें इस खुदा की ताकत पर ईमान था जिसने मसीह को मौत से जिंदा किया। आयत 13 कहती है, अब यह बहुत दिलचस्प हो रहा है। आका तुम जान सको कि जब तुम इसमें हो तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस पर नजर डाली, देखें कि अब क्यों फाते हैं। कलसियों बाब 2 आयत 13, तुम मुर्दा थे क्योंकि तुम गुनहगार थे और खुदा के लोग नहीं थे, लेकिन खादी मसीह को आपको जिंदा करे जब वो हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ करे। खुदा ने ईसा को तुम्हें जिंदा करने दिया जब इसने हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ कर दिया। आयत 14, खुदा ने हमारे खिलाफ मूसा के कानून की नाफरमानी करने की वजह से जो इल्जामात थे उन्हें मिटा दिया। उसने उन्हें दूर किया और सलीब पर कील लगा दिया। वहां मसीह सलीब के बारे में बात करते हुए कहते हैं, वहां मसीह ने तमाम ताकतों और कुव्वतों को शिकस्त दी। उसने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि वो कैदियों की तरह ले जाए जा रहे हैं। जब इसने अपनी फतह का जश्न मनाया
जब इसने सलीब पर अपनी फतह का जश्न मनाया। मुझे उसे देखने दो, आइए इसे पढ़ते हैं। बादशाह जेम्स के तर्जमे में कलसियों के बाब 2 में जहां कहा गया है, उसने सरदारों और ताकतों को बेअसर कर दिया। इस पर नजर डालें। हाँ, तो ये कहता है, और तुम मुर्दा थे, आयत 13, और तुम अपने गुनाहों और अपनी जिल्द की बेखतना होने की हालत में थे। उसने तुम्हें इसके साथ जिंदा किया, तुम्हारे तमाम गुनाहों को मुआफ करते हुए इन अहकाम की तहरीर को मिटा दिया जो हमारे खिलाफ थी, जो हमारे लिए नुकसानदेह थी, और इसे रास्ते से हटा दिया, इसे अपनी सलीब पर कील लगा दिया। आयत 15 कहती है, और सरदारों और ताकतों को बेअसर करके उसने उनका खुला तमाशा किया और उन पर इसमें फतह हासिल की। क्या तुमने देखा? आयत 16 अब कहती है, बस कोई आदमी तुम्हें न जज करे, बस कोई आदमी तुम्हें खाने या पीने में न जज करे, या किसी मुकद्दस दिन, या नए चांद, या हफ्ते के दिन के बारे में। क्या तुमने ये देखा? किसी को भी ये महसूस न करने दो कि तुम सही काम नहीं कर रहे, तुम नहीं कर रहे, तुम खुदा की खिदमत पूरी तरह नहीं कर रहे जैसे तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि तुम गए ही नहीं एक गांव के देवता या दूसरे के सामने एहतराम करने के लिए। ध्यान से सुनो, मुझे आपको अपनी जाती कहानी से बताने दें। मैं एक रोमन कैथोलिक के तौर पर पैदा हुआ 15 फरवरी 1961, फिर सितंबर 1973 मुझे दाखिला मिल गया और मैं बैप्टिस्ट एकेडमी लागोस में पहली जमात के तालिब इल्म के तौर पर दोबारा शामिल हुआ बैप्टिस्ट एकेडमी लागोस में। लेकिन एकेडमी एक बैप्टिस्ट स्कूल था। वो सितंबर का महीना था इसी साल। उन्होंने एक मुहिम चलाई। उनके पास अमेरिका से एक पादरी साहिब थे, एक अमेरिकी पादरी, जॉन टियनी। ना जाने क्यों मैं आज तक इस नाम को याद रखता हूं। ना जाने क्यों मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि पादरी टियनी ने क्या कहा, लेकिन जब इसने कुर्बानगाह की दावत दी, मैंने मसीह को अपनी जिंदगी सौंप दी। और मुझे याद है, अगर बैप्टिस्ट एकेडमी से कोई है जो सितंबर 1973 में स्कूल में था, तो तुम्हें यह मुहिम याद है जहां इस आदमी ने कहा, डूडू मीठा है। मुझे डूडू पसंद है क्योंकि ये अमरीकी नाइजीरिया आया। उसने डूडू खाया, जो कि एक तले हुए केले का फल है, और उसे तले हुए केले का फल बहुत पसंद था। उसने कहा, डूडू मीठा। वो अपनी टांग को खींचता, तो मुझे याद नहीं है कि इसने क्या आवाज दिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने सितंबर 1973 में मसीह को अपनी जिंदगी सौंप दी। और जब मैंने मसीह को अपनी जिंदगी सौंप दी, तो हमने बाइबल पढ़ना शुरू किया और मैंने खुरूज की किताब में पढ़ा। मुझे याद है कि मैं 12 साल का था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने खुरूज की किताब के बाब 12 में यानी बाब 20 में क्या पढ़ा, जब खुदा नीचे आया और खुदा ने बनी इसराइल से कहा, मैं ही तुम्हारा रब हूं, तेरा खुदा, जिसने तुम्हें गुलामी के घर से बंदिश से निकाला। और अगली बात उसने कहा, तुम्हारे लिए मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं होगा। और उसने उनसे कहा, तुम्हें किसी भी तस्वीर के सामने सर झुकाना नहीं चाहिए, आसमान में, जमीन पर और जमीन के नीचे किसी भी शय की सूरत में। तो ये कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। बहुत दिलचस्प कहानी है, और तब से आज तक मेरी जिंदगी ऐसी ही रही है। दिसंबर में हम छुट्टियों पर थे और मैं घर गया। तो जैसा कि हमेशा होता है, कैथोलिक होने के नाते मेरी माँ हमें कैथोलिक चर्च ले गई। मुझे नहीं मालूम कि क्या वो अब भी कैथोलिक चर्च में ये करते हैं, और मैं किसी किस्म की बेअदबी नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है, मेरा जाती तजर्बा। तो हम चर्च में दाखिल हुए, और तुम जानते हो, जब आप चर्च में दाखिल होते हैं और सलीब को देखते हैं, तो अगली बात यह होती है कि लोग झक जाते हैं, सलीब के सामने सर झुकाते हैं। तो मेरी माँ ने ये किया, और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, अपनी मादरी जबान में, कि खुदा इस चीज में नहीं है, यह खुदा नहीं है, तुम एक बुत के साथ बंधे हुए हो। और मेरी माँ अपनी मादरी जबान में मुझसे कहती है, खामोश रहो, तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा, नहीं माँ, खुदा इस चीज में नहीं है, ये एक बुत है, ये एक तस्वीर है। तो उसने मुझे खामोश करने की कोशिश की और हम कुर्सी पर बैठने गए।
मैं कभी भी ये नहीं भूलता, और सालों के दौरान किसी वजह से, इसीलिए मैं अपनी तजुर्बे पर खास तौर पर हैरान नहीं हूं। जब मैं एशिया पहुंचा और मैंने देखा कि पूरा एशिया अपनी तमाम तस्वीर के साथ बुत परस्ती के हवाले कर रहा है, और कटाइम और ऐसी चीजें, तो इसी उम्र से कभी भी किसी भी शक्ल में मैं आया किसी भी बुत परस्त चीज के पार, ये मेरे अंदर कुछ निकाल लाया। अब जानते हैं, मुझे उनकी तरफ से बुरा भला कहा गया और मैं इनके खिलाफ बोलता हूं। ध्यान से सुनो, बाइबल कहती है किसी को ये मत बताने दो कि तुम्हें क्या खाना या पीना चाहिए। उन्हें यह मत कहने दो कि तुम्हें नए चांद का त्योहार सब कोई और त्योहार मनाना चाहिए। लेकिन यह सिर्फ ये कहता है ये चीजें हैं। सिर्फ एक साया था जो आने वाला था, लेकिन मसीह हकीकी है, मसीह असल चीज है। किसी को यह मत बताने दो कि तुमने इस तारीख को सजदा करने के लिए नहीं गए। तुम्हारे गांव में, तुम्हारी कम्युनिटी में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे कस्बे में तुम मर जाओगे, वो तुम्हें नहीं मार सकते। सुने, अल्लाह ने कहा, हर जान मेरी है, जैसा कि बाप की जान मेरी है, बेटे की जान भी मेरी है। वो जान जो गुनाह करती है वही मरेगी। तो ईसा ने कहा, वो बाप जो उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है। कोई भी तुम्हें मेरी हाथ से नहीं छीन सकता, क्योंकि ये बाप है जिसने तुम्हें मुझे दिया। अगर आप ईसा के हैं, अगर अपने ईसा को अपने रब और नजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है, तो ध्यान से सुने। हता कि जब जादूगर और जादूगरनी वाकई आपकी किसी भी चीज से बाहर आकर रात को आपकी खिड़की के पास शोर मचाते हैं, एक बार जब आप यसू कहते हैं, वो सब भाग जाएंगे, वो सब भाग जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये कहना है ईसा, और इनमें से हर एक चला जाएगा। आमीन। तो आयत 18 कहती है, इन लोगों से धोखा मत खाओ जो आजिजी का दिखावा करते हैं और जो फरिश्तों की इबादत करते हैं। वो ख्वाब देखने का बड़ा दावा करते हैं, लेकिन ये सब बेवकूफ़ी है, क्योंकि उनके जहन खुद गरज ख्वाहिशात से भरे हुए हैं। वो अब मसीह का हिस्सा नहीं रहे जो पूरे जिस्म का सर है। मसीह जिस्म को ताकत देता है और वो उसके जोड़ों और पट्टों का इस्तेमाल करता है ताकि उसे एक साथ रख सके, जैसे ये अल्लाह की ताकत से बढ़ता है। आयत 20 कलसियों 2:2 कहती है, तुम मसीह के साथ मर गए। अब कायनात की ताकतें तुम पर कोई असर नहीं रखती। मैं दोबारा कहता हूं कि तुम मसीह के साथ मर गए। अब कायनात की ताकतें तुम पर कोई असर नहीं रखती। आप क्यों ऐसे जीते हैं जैसे आपको उन कवानीन की पैरवी करनी है, जैसे कि ये ना छुएं, ये ना चखें, ये ना लगाएं। इन चीजों के इस्तेमाल के बाद वो किसी काम की नहीं रहती। तो इंसानों के बनाए हुए कवानीन से क्यों परेशान होना? इंसानों के बनाए हुए कवानीन से क्यों परेशान होना? इन कवानीन की पैरवी करना होशियार नजर आता है। ये ऐसा लगता है कि वो आपको खुदा से ज्यादा मोहब्बत करने पर मजबूर करते हैं, बहुत आजिज बनाते हैं और आपके जिस्म पर कंट्रोल रखने की बात करते हैं। लेकिन उनके पास वाकई हमारी ख्वाहिशात पर कोई ताकत नहीं है। जब हम इसको खत्म करने लगते हैं, यहां कहा गया है, कायनात की ताकतें तुम पर कोई असर नहीं रखती। मैं दुआ करता हूं कि मसीह के जिस्म के अराकीन इस हकीकत को समझी और जाने के वाकई कायनात की ताकतें उन पर कोई असर नहीं रखती। सने पुलिस ने गलतूहे के बाब 2 आयत 20 में कहा, मैं मसीह के साथ मसलूब हूं, फिर भी मैं जिंदा हूं, फिर भी मैं नहीं। मसीह मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में जिंदा है। जो जिंदगी में अब इस जिस्म में, इस गोश्त में गुजार रहा हूं, मैं खुदा के बेटे की ईमान के जरिए जीता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत की और अपने आप को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। अगर आप वाकई दोबारा पैदा हुए हैं तो मसीह आप में जिंदा है। हालेलुया, खुदावंद के नाम की तारीफ हो।
हम आपके लिए यसू मसीह की सलीब से बड़ी और दिलचस्प खबर लाते हैं और अब उसे नशर करते हैं। अब जानते हैं, ये कल की तरह लगता है, लेकिन ये इस महीने फरवरी 2019 में 6 साल पहले की बात है। मैं यहाँ आया आपको इस आने वाली किताब के बारे में बताने के लिए, फिर यसू मसीह की सलीब, इसका पैगाम और उसकी ताकत। हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमें यकीन है कि यसू मसीह की सलीब इंसानियत की तारीख में सबसे अहम वाक़या है। और फिर हमने यसू मसीह की सलीब का आगाज़ किया और अपने इसे नशर किया। और पिछले 6 सालों में हमने यसू मसीह की सलीब पर बड़ी और दिलचस्प बहसें की हैं, और ये कि ये इंसानियत पर किस तरह असरअंदाज हुई है। तो 2023 में हमारे पास एक सिलसिला था जिसका उन्वान था यसू मसीह की सलीब, जो अशिया ने देखा, जो कि अशिया की किताब का मुताला है, खास तौर पर बाब 53। और हमने आपको इस वक्त बताया कि खुदावंद ने कहा कि हमें एक किताब में शामिल करना चाहिए, और हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यसू मसीह की सलीब, इसका पैगाम और उसकी ताकत यसू मसीह की सलीब के जरिए और अपने इसे नशर किया। एक नए बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्वान: यसू मसीह की सलीब, जो अशिया ने देखा। अशिया का मुताला, बाब 53। तो हम अब इस तरह जी रहे हैं क्योंकि ये बहुत जल्द सामने आने वाला है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हमारे शिराकतदारों, हमारे नाजरीन, अब जिन्होंने हमें हौसला दिया, हर हफ्ते वहां मौजूद रहकर, सुनकर और हमें फीडबैक देकर हमारी मदद की, हम चाहते थे कि अब सबसे पहले जाने। ये बहुत बहुत जल्द, चंद दिनों से चंद हफ्तों के अंदर, यसू मसीह की सलीब, जो अशिया ने देखा, किताब जारी की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ वहां होंगे और आप इस पैगाम की हिमायत करते रहेंगे जो यसू ने इंसानियत के लिए सलीब पर किया। पूरे दुनिया भर में इस नशरियात की मालूमात को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करके हम उन्हें इस नशरियात में शामिल होने की दावत दे रहे हैं, जब तक कि हम इस पूरी ज़मीन को यसू मसीह के इल्म से भर ना दें, और जो कुछ इसने सलीब पर किया इसका इल्म जैसे पानी समंदर को ढांप लेता है। आमीन। इस सैयारे पर 8 अरब से ज्यादा इंसान हैं, तकरीबन 8.9 अरब। 8 कुछ। इस सैयारे पर तकरीबन 8.9 अरब इंसान हैं। इस तादाद में से 60% से ज्यादा अभी तक यसू के बारे में नहीं जानते। आप हमारे साथ शिराकतदारी कर सकते हैं और इस मालूमात को दुनिया भर में इस नशरियात को शेयर करके फराहम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बराकरम हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको इस दिन मजीद मालूमात देंगे जब ये किताब आपके लिए, हमारे तमाम नाजरीन के लिए और वहाँ मौजूद तमाम किताबों के शौकीन लोगों के लिए जारी की जाएगी। जो लोग ईसा से मोहब्बत करते हैं और जो कुछ उन्होंने हमारे लिए सलीब पर किया, आज हम आपसे मोहब्बत करते हैं। ईसा आपसे मोहब्बत करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। गौर से सुने। खुदा को ये पसंद आया कि ईसा मसीह में तमाम कादिर मुतलक खुदा जिस्मानी तौर पर सुकूनत करे। आमीन। और बाइबल कहती है, आप मसीह के अंदर मुकम्मल हैं। आप मसीह के अंदर मुकम्मल हैं। कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आराम करो, मैं चर्च जा रहा हूं। अपनी बाइबल पढ़ो, दुआ करो। पूरे गांव को जमा होने दो, पूरे गांव को जमा होने दो और कहो, अगर तुम इस शैतान के सामने झुकने से इनकार करते हो, हम तुम्हें इस गांव से निकाल देंगे। आप मसीह में मुकम्मल हैं और मसीह तमाम हुक्मरानी और ताकत का सर है। आप मसीह में मुकम्मल हैं, मसीह तमाम हुक्मरानी और ताकत का सर है। तमाम रूहें इसने बनाई हैं और ये इसके लिए बनाई गई हैं। और आप कलसियों के बाब 1 आयत 19 और कलसियों के बाब 2 आयत 9 और आयत 10 के मुताबिक आप इसके अंदर मुकम्मल हैं, जो तमाम हुक्मरानी और ताकत का सर है। वो आपको कैसे छू सकते हैं? वो आपको कहां से छुएंगे? अब जानते हैं। अशिया के बाब जून में, अशिया के बाब जून में आयत 14 से
आप इंसाफ में कायम किए जाएंगे। तुम जुल्म से दूर रहोगे क्योंकि तुम्हें खौफ नहीं होगा, और दहशत से क्योंकि ये तुम्हारे करीब नहीं आएगी। देखो, वो जरूर इकट्ठे होंगे लेकिन मेरी तरफ से नहीं। जो भी तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा होगा वो तुम्हारे लिए गिर जाएगा। देखो, ये वो जगह है जहां मैं जा रहा हूं। देखो, मैंने इस लोहार को पैदा किया है जो आग में अंगारों को फूंकता है और जो अपने काम के लिए एक आला तैयार करता है, और मैंने बर्बाद करने वाले को भी पैदा किया है। आयत 17 कहती है, तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी हथियार कामयाब नहीं होगा। क्या आप ये देख रहे हैं? और हर जबान जो तुम्हारे खिलाफ फैसला में उठेगी, तुम उसे सजा दोगे। ये खुदावंद के बंदों का विरसा है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। खुदावंद फरमाता है, तो वो कहता है, मैंने बर्बाद करने वाले को भी बनाया, वो बर्बाद करने वाला जो तबाह करता है, मैंने इसे बनाया। ये आपको बताता है कि कोई भी बर्बाद करने वाला आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। उसने कहा कि मैंने इस लोहार को बनाया जो आग में अंगारों को फूंकता है, लेकिन वो आपको छू नहीं सकते। ध्यान से सुनो, अगर आप मसीह में हैं तो आप खुदा के अंदर हैं, कुछ भी आपको छू नहीं सकता। और मुझे उम्मीद है कि उन आखिरी 3 नशरियात के जरिए मैंने हमें ये बात वाज़े कर दी है कि मसीह में होना खुदा में होना है। आपके पास खुदा की मुकम्मल ईद है। आपको इसी और माबूद की जरूरत नहीं है। आप मसीह में और खुदा में मुकम्मल हैं। तुम्हें जरूरत नहीं, आपको हिफाजत की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। आपकी हिफाजत के लिए आपके पास मसीह है और आपके पास खुदा है। आज जब मैं खत्म करता हूं, अपने ये सुना है। क्या दिलचस्प और शानदार जगह है मसीह में होना, ये जानते हुए कि इस कायनात की तमाम ताकतें आपको छू नहीं सकती। क्या आप इस शख्स को कबूल करना नहीं चाहेंगे? क्या आप यसू को अपने खुदावंद और नजात दहिंदा कबूल करना नहीं चाहेंगे? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूं। अगर आप अपनी दाएं हाथ को अपने सीने पर इस तरह रखें तो उसका क्या मतलब है? सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि आप ये दिल से कहते हैं। जो आप दुआ कर रहे हैं, आप ये दिल से कहते हैं और मेरे बाद ये दुआ कहो। प्यारी आसमानी बाप, मैं जानता हूं कि मैं एक गुनहगार हूं और मैं अपने गुनाह से खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, अपने यसू मसीह अपने बेटे को मेरे गुनाह के लिए मरने के लिए भेजा और अपने इसे 3 दिन बाद मर्दों में से जिंदा किया। ए खुदावंद यसू, मेरी जिंदगी में आ, मेरे खुदावंद बिन, मेरे नजात दहिंदा बन। अपने खून से मेरे गुनाहों को धो दो, मेरा नाम अपनी जिंदगी की किताब में लिख लो और आज मुझे खुदा का बच्चा बना, क्योंकि मैं अपने दिल से खुदावंद यसू पर ईमान रखता हूँ कि मैं अपने मुंह से इकरार करता हूँ कि खुदा ने इसे मर्दों में से जिंदा किया है। मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। शुक्रिया यसू, मुझे बचाने के लिए। हालेलुया, मुबारक हो। अगर आप वो सादा दुआ करते हैं जैसी कि ये सुनने में आसान लगती है, तो आप अब खुदा के बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर मत रुकिए। किसी भी बाइबल पर ईमान रखने वाली चर्च में जाएं, पादरी से मिले, उन्हें बताएं कि अपने गुनहगार की दुआ की है और अब चाहते हैं कि पानी और रूह से बपतिस्मा लेने के लिए। यसू ने मरकुस बाब 16 आयत 16 में कहा, जो शख्स ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो बच जाएगा। फिर यहाँ पर मत रुकी, हर बुध को यहाँ वापस आए। हम एक मुहिम पर हैं। ये मुहिम थी, हम चाहते हैं कि सारी दुनिया को वो सब कुछ मालूम हो जो आप जानते हैं, यसू के बारे में जाने, और ये जानना कि इसने इंसानियत के लिए सलीब पर किया। और हम चाहते हैं कि ये इल्म पूरी जमीन को इस तरह भर दे जैसे पानी समंदर को ढांपता है। आपका इसमें क्या किरदार है? जब भी आपको इस नशरियात के बारे में मालूमात मिले, वो उसे अपने तमाम दोस्तों, तमाम राबितों, तमाम साथियों, तमाम पड़ोसियों और तमाम खानदान के अफराद को भेज दें और उसे सब पर शेयर करें। इसे अपनी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शाये करें और जिन लोगों को अपने भेजा है उन्हें मदऊ करें। उन्हें बताएं कि वो फेसबुक और यूट्यूब पर इस नशरियात में शामिल हों जैसा कि आपकी स्क्रीन पर वक्त बताया गया है, और उन्हें बताएं कि वो भी अपने दोस्तों को शामिल होने के लिए कहें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अगले हफ्ते
تک यसू वापस नहीं आए तो हम दोबारा आएंगे एक और रूहानी रोशनी देने वाले यसू मसीह के सलीब के साथ, और अब नशरियात करें। तब तक हम आपसे मोहब्बत करते हैं, यसू आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह आपको बरकत दे। अलविदा। एक दूर दराज पहाड़ी पर एक पुरानी खुरदरी सलीब खड़ी थी।